आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत के बाद देखा जा रहा है कि जितने भी इंसाफ पसंद लोग हैं वो चाहे भारत में हों या फिर भारत के बाहर हों, लगातार उनको श्रद्धांजलियाँ दे रहे हैं। क्योंकि श्रद्धांजलि देने का ये कारण है कि कहीं ना कहीं उन्होंने मानवता को बचाया है, मानवता को नई पहचान दी है, नए सबक दिए हैं। इसे लेकर तरह तरह के श्रद्धांजलि के भी कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी क्रम में इलाहाबाद में दरियाबाद में एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर हकीम इलाही साहब आए हुए हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं रहबर मुअज़्ज़म के, वो मुख्य अतिथि के तौर पे आए हुए हैं आप यहाँ पे। और इसके अलावा भी आलिम और भी यहाँ पे मौजूद लोग हैं। कुछ सवाल हैं जो कहीं ना कहीं आप लगातार ये देखा जा रहा है कि युद्ध में क्या हो रहा है, ये सारे परिणाम मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चल रहे हैं, वो चाहे सच हो या झूठ हो। लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो सब जानना चाहते हैं वो छूट जाते हैं। तो इसके लिए हम सवाल करना चाहेंगे आगा से कि क्या ईरान में जिस तरीके से वार हो रहा है, जिस तरीके से वार के नतीजे आ रहे हैं, तो उन नतीजों का किस तरीके से क्या मतलब देखते हैं आप लोग؟ جنگی که آغاز شده است بر ایران تحمیل شده است و تحولاتی که رو به افزایش است، حضرت عالی چگونه آن را بررسی می‌فرمایید؟ Thank you very much for having me here. همونطور که شما مستحضر میدونید ایران این جنگ رو شروع نکرد. ایران همواره به دنبال گفتگو بوده. این بار دوم است که در میان گفتگو و مذاکرات و نگوشیشن اونها میز رو ترک کردن و به ایران حمله کردن. یقینا ما تمایل به ادامه جنگ نداریم، تمایل به ادامه خونریزی نداریم، تمایل به این که مردم سایر کشورها رنج ببرند از مشکلات گاز و اویل و پترول نداریم. ولی خب اونها جنگ رو شروع کردن، خودشون هم باید این جنگ رو متوقف کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت آیت الله حکیم الہی صاحب جو رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی الخامنئی کے نمائندے خاص ہیں ہندوستان میں، آپ کے یہ سوال جو کیا گیا اس کے جواب میں آپ نے فرمایا آپ بخوبی پوری دنیا جانتی ہے کہ ایران نے کسی جارحیت کا ارتکاب نہیں کیا، بلکہ امریکہ اور اسرائیل نے اپنے جارحیت کا جنگ کا آغاز کیا، اور رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کو انہوں نے بے دردی سے شہید کیا، اور ہزاروں کی تعداد میں ایرانی شہریوں کو اب تک یہ ہلاک کیا گیا ہے یا انہیں زخمی کیا گیا ہے۔ اور ہم کسی بھی قیمت پہ ہم جنگ کو جاری رکھنا نہیں چاہتے۔ جنگ جو ہے، جنگ میں کسی کی فتح نہیں ہوتی، جنگ صرف مصائب اور مصیبتوں کا عوام کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس اعتبار سے ہماری یہ پوری کوشش ہے، ہم اس بات کی آرزو کرتے ہیں کہ جلد یہ جنگ جو ہے جلد از جلد ختم ہو جائے، اور اس جنگ کی وجہ سے دنیا کی عوام جو مصائب کے سے دوچار ہو چکے ہیں، پوری دنیا اس سے متاثر ہو گئی ہے، اور لوگوں کو اب کے گیس کا تیل نہیں مل رہا ہے، کوکنگ گیس نہیں مل رہا ہے، اپنے کروڈ آئل سے لوگ بے بہرا ہو رہے ہیں، اور دنیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے یہ متاثر ہوئی ہے۔ لیکن ہم اپنا دفاع کر رہے ہیں، جب تک ہم پہ حملہ ہوتا رہے گا ہم دفاع کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر دشمن یعنی امریکہ اسرائیل اگر وہ یہ فیصلہ کریں کہ ہم جنگ بند کرنا چاہتے، ہم بھی ضرور جنگ بند کریں۔ ہماری آرزو ہے کہ یہ امریکی جارحیت اور اسرائیلی جارحیت کا جلد از خاتمہ ہو، اور اگر وہ جنگ کو اگر ختم کرتے تو ہم بھی جنگ بند کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 23 दिनों से लगातार जंग जारी है। इस 23 दिनों में काफ़ी नुकसान हो गए हैं। काफ़ी नुकसानों के बीच में अब बड़ा सवाल ये है कि इसकी भरपाई किस तरीके से होगी। वहाँ पे जितने भी एजुकेशन से लेकर वहाँ की बिल्डिंगों या फिर सारी चीज़ों का नुकसान लगातार हो रहा है। इसे ईरान अब किस तरीके से ख़ुद को डेवलप करेगा और कैसे खड़ा होगा؟ 23 روز است که از این جنگ تحمیلی می‌گذرد و خود حضرت عالی بهتر می‌دانید که چگونه تأسیسات مردم ایران و ساختاری که متعلق به مردم ایران هست دشمن داره از بین میبره، و بعد از پایان جنگ خود جمهوری اسلامی ایران چگونه خودش را بازسازی خواهد نمود. در این راستا حضرت عالی نظراتون را اعلام بفرمایید. متاسفانه این یک جنگ ناعادلانه هست، جنگی است که بر مردم ما تحمیل شده، یه جنگی که هرگز ما خواستار چنین جنگی نبودیم و دشمن متاسفانه زیرساخت‌های ما رو مورد تجاوز قرار داده، مدارس ما رو خراب کرده، پالایشگاه نفت ما رو در شهرها خراب کرده و موجب آلودگی محیط زیست شده، و همچنین بسیاری از ابنیه تاریخی ما را
که چند صد سال چند قرن سابقه داره اونها رو هم خراب کرده. برجت این جنگی که به ما تحمیل شده و ما باید از خودمون دفاع بکنیم و انشالله بعد از تمام شدن جنگ هم به کشور رو به نحو احسن بازسازی خواهیم کرد، ولی خب باید به یه حدی برسیم که دیگر این تکرار نشه. आप जानते हैं कि ईरान पर इस्लामी जमहूरी ईरान पर जंग को मुसल्लत किया गया और ईरान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और उस पर उन्होंने रास तौर पर निशाना बना रहे हैं, जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका आवाम से रास ताल्लुक़ है, जैसा पानी पीने के जो सहूलतें हैं और आपके जो डिसैलिनेशन प्लांट जो जिसको दरिया के पानी को साफ़ किया जाता है उस पर हमला किया गया। कई ऑयल रिफाइनरीज़ को ईरान के अमदी तौर पर निशाना बनाया गया और वाज़े कि जब ऑयल रिफाइनरी को आग लगती है तो कई स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जो है मुकम्मल तौर पर आपके पोल्यूशन हो जाता है, वहाँ से काफ़ी लोगों को नुकसान हो रहा है। रोज़ाना बड़ी तादाद में बेगुनाह शहरी ईरान के या मारे जा रहे हैं या ज़ख्मी हो रहे हैं और तमाम ये मसाइब और मुश्किलात का ईरानी अवाम जो मुश्किलात का सामना कर रही है, ये और इसके लिए हम राज़ी नहीं हैं। उसके अलावा हम शाहिद हैं कि और ये पूरी दुनिया की अवाम को, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, तकरीबन तमाम ममालिक भी वो इस जंग से मुतासिर हो रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से ख़ात्मा हो। और हम ये चूँकि हम अल्लाह पे भरोसा करते हैं और हम उम्मीद करते हैं और हमारे ईरान में और ईरानी अवाम में ये तवानाई हासिल है कि अगर कल जंग बंद हो जाए हम मुख्तसर अरसे में ईरान को दोबारा हम उसी तरह से पहुँचा देंगे जैसा 2 साल पहले ईरान तरक्की के राह पे गामज़न था। कोई दुनिया की कोई भी ताकत ईरान के तरक्की को रोक नहीं सकती। और लेकिन हम ये है कि मगर हम पे हमला अगर होता रहेगा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये हमारा इरादा है और दुश्मन हमारे से खौफज़दा है और हमारी जद्दोजहद जारी व सारी रहेगी। हम अपना मुकम्मल तौर पर हर तरीक़े से हम अपना दिफा करेंगे और जंग बंद होने के बाद इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल क़रीब में बहुत आसानी के साथ हम अपने ईरान को दोबारा एक तरक्की के राह पर गामज़न करने में इंशाअल्लाह मुकम्मल कामयाबी हासिल होगी। आखिरी सवाल ये है कि अब भारत के लोग, ख़ास तौर से भारत के लोग किस तरीके से ईरान का साथ दें और ईरान के साथ साथ क्या कर सकते हैं, क्या करें क्या ना करें ईरान के लिए? मिल्लत हिंदुस्तान दौलत हिंदुस्तान خیلی عشق و ارادت به ایران دارن و در این راستا میخوان به ایران همکاری بکنن و به نظر حضرت چگونه ما میتونیم ملت هند و دولت هند با ایران چگونه میتونیم در این راستا همکاری بکنیم؟ بله، همینطور که گفتید هم ملت عزیز و شریف هندوستان و هم دولت هندوستان علاقه زیادی به ایران دارن، همان گونه که مردم عزیز ایران و دولت ایران هم علاقه زیادی به دولت و ملت هندوستان دارن. تا حالا هم انصافاً خیلی خوب همکاری کردن، هم دولت هم ملت هندوستان همکاری‌های بسیار خوبی داشتن، اظهار همدردی، سمپاتی، سولیداریتی داشتن و ما از همه اونها تقدیر و تشکر میکنیم و امیدواریم که هر چه زودتر این جنگ تموم بشه و این رنج و آلام و دردهایی که همه مردم و همچنین مردم عزیز هندوستان دارن متحمل میشن در کمبود گاز و بعضی از حاملهای انرژی تموم بشه و صلح و عدالت در جامعه حکم فرما بشه. Finally, also I'm thankful to our brothers and sisters in India as well as to the government of India. थैंक यू। मिल्लत हिंदुस्तान हमारी हर दिल अज़ीज़ मिल्लत हम समझते हैं और हिंदुस्तान की हुकूमत का हम तहे दिल से एहतराम करते हैं और ख़ुद आप जानते हैं कि ख़ुद हिंदुस्तान की हुकूमत और हिंदुस्तानी अवाम भी ईरानी अवाम से बेइंतहा वालेहाना मोहब्बत करते हैं और ईरानी हुकूमत भी हिंदुस्तानी की हुकूमत को वो बहुत अच्छे गहरे ताल्लुक़ात हैं। और इस एतबार से जंग के आगाज़ के बाद से लेकर हुकूमत हिंद और हिंदुस्तान की अवाम ने ईरान के साथ अपने हमबस्तगी का इजहार किया, यकजहती का इजहार किया और अपने क़ल्बी तौर पर जो भी मुमकिन उनसे हो सकता था उन्होंने हमारे साथ ताउन किया है। उसके तहे दिल से हम हिंदुस्तानी हुकूमत की भी मशहूर हैं और ख़ुसूसी तौर पर हमारे अज़ीज़, हमारे हर दिल अज़ीज़ जो हिंदुस्तान की अवाम है उनके भी हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में, इन मसाइब की घड़ी में वो हमारे साथ खड़े हुए हैं और हम मुमकिन तौर पर हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये जंग में ये जल्द अज जल्द इस जंग का ख़ात्मा हो और जंग की वजह से जो ईरान की अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, हत्ता हम इस बात
बात के शाहिद हैं। हम इसके लिए कभी राज़ी नहीं है कि हिंदुस्तान इस जंग की वजह से हिंदुस्तान की आवाम को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कुकिंग गैस की क़िल्लत हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं और क्रूड ऑयल की भी क़िल्लत होगी और दीगर तमाम क़िल्लतें वजूद में आ रही हैं और हिंदुस्तानी आवाम को इस जंग की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लेकिन अल्लाह की बारगाह में दस दुआ हैं कि जल्द अज जल्द ये जंग का ख़ात्मा हो और इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में अमन व अमान क़ायम रहे और इंशाअल्लाह ये दुनिया में ऐसे हालात बने कि कभी कोई जंग और मसाइब अवाम दुनिया की अवाम मुश्किलात से इन मुश्किलात से दो चार न हों। रहबर मुअज़्ज़म के रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि का ये साफ कहना है कि भारत के साथ साथ उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं जो ईरान के इस मुसीबत भरे वक्त में उनके साथ खड़े हुए हैं और ये भी उन्होंने कहा है कि वो जंग नहीं चाहते, जंग होना उनकी मंशा नहीं है, लेकिन ईरान के साथ जब जुल्म होगा तो ईरान अपने सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाएगा। प्रयागराज ज़िले से बाकर हुसैन की बात कही है, हमेशा भलाई की बात की, हमेशा मज़लूम के साथ ही रहें। उन्होंने किसी मज़हब को, किसी धर्म को टारगेट नहीं किया, बल्कि हमेशा हर इंसान जो मज़लूम रहा उसके साथ रहे और जो भी ज़ालिम रहा उसके ख़िलाफ़ रहे। आज इलाहाबाद शहर के दरियाबाद में एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पे हमारे साथ जायसी साहब हैं और ईरान कल्चर हाउस के और रहबर मुअज़्ज़म के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं। यहाँ पे अब्दुल माजिद साहब वो आए हुए हैं और इस कार्यक्रम में शिरकत अभी कुछ देर बाद करेंगे। हमारे साथ इस पूरे प्रोग्राम का मैनेजमेंट करने वाले जायसी साहब हैं। जायसी साहब से पूछेंगे कि ये किस तरीके का मैनेजमेंट है, क्या है प्रोग्राम इसका पूरा बताइए। जी नमस्कार। आपके चैनल्स के तमामी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये श्रद्धांजलि समारोह है हमारे सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली ख़ामनाई ताबसरा ने, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को इंसानियत के लिए क़ुर्बान किया। और हम सिर्फ़ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हम हिंदुस्तान के वासी हैं। हमारा मज़हब और हमारा मसलक से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत आयतुल्ला अली ख़ामनाई थे। असल वजह यह है कि जो इस बात को आप जो पूछना चाहते हैं इसको इस पैराए में देखा जा रहा है कि ये ईरान का मसला है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों के माध्यम से कि ये ईरान की बात नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की बात है। क्योंकि सिर्फ हमें नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो लोग भी मानवता के हामी हैं, शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, उनका ये पैगाम है, उनके लिए पैगाम है कि आयतुल्ला अली ख़ामनाई ने अपनी ज़िंदगी को किसी एक मज़हब के दायरे में नहीं रखा बल्कि मज़हब से ऊपर उठकर एकता, अखंडता, शांति, भाईचारे का पैगाम उन्होंने दिया। हम इसीलिए उनके मरने के बाद इस शोक श्रद्धांजलि में मौजूद हैं ताकि दुनिया को बता सकें कि ये जो आवाज़ अली ख़ामनाई आयतुल्ला अली ख़ामनाई साहब ने दुनिया में उठाई, गाज़ा के मज़लूम बच्चों की, फ़िलिस्तीन में मरने वालों की और ईरान में होने वाले उस जुल्म व बर्बरियत के ख़िलाफ़। क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है जो हमने करबला से सीखा है। 1400 साल से हम सिर्फ़ और सिर्फ क्रूरता के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़, क्योंकि हमारा मज़हब जो बताता है हम उसी पर आइन पर गुज़रते हैं। और अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में भी सत्य और जुल्म के ख़िलाफ़ जो एक लड़ाई रही, जिसे भगवान राम और रावण की लड़ाई कहा गया, उसमें आज तक पूरे हिंदुस्तान के लोग राम की जय जयकार क्यों करते हैं, रावण पर लानतें भेजते हैं? उसकी वजह यह है कि भगवान राम ने उस चीज़ को प्रमोट किया जिसे हक़ कहते हैं, इंसानियत कहते हैं, और उसके ख़िलाफ़ रावण था। तो हम भी आज इस पूरी दुनिया के सामने ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये सिर्फ़ आयतुल्ला अली ख़ामनाई की शहादत नहीं है बल्कि इंसानियत को महसूस करने वाले हर इंसान की शहादत है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई की शहादत के बाद तरह तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो शिया जमात में लोग तरह तरह के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल के ख़िलाफ़ लोग हैं और तरह तरह के इन कार्यक्रमों के बीच में शहर इलाहाबाद में भी आज एक कार्यक्रम है जो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है। इसमें अब्दुल हकीम साहब आए हुए हैं जो आयतुल्ला अली ख़ामनेई के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो श्रद्धांजलि के मुख्य अतिथि हैं। यहाँ पे और भी इनके अलावा कई मेहमान आए हुए हैं और
और ये कार्यक्रम क्यों ज़रूरी है, समाज में इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सारी बातें जानने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं एडवोकेट शाहिद काज़मी साहब। हम इनसे कुछ सवाल रखेंगे और इस कार्यक्रम के और इसके उद्देश्य के बारे में सारी बातें जानेंगे। ये क्या कार्यक्रम है और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या मैसेज जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाहाबाद शहर की तारीख़ी अहमियत को देखते हुए हमारे हिंदुस्तान ने ईरान के साथ बहुत पुराने रिश्ते अपने निभाए हैं। उन्हीं रिश्तों के तहत यहाँ की कौम ईरान बराबर जाया आया करती है और उन ताल्लुकात को निभाने का ये सही मौका और वक्त है। ये रहबर मौज़म अली ख़ामेनी साहब की शहादत जिस बेइंसाफ़ी और बर्बरियत के साथ इज़राइल और अमेरिका ने अंजाम दिया, उसकी चारों तरफ निंदा होनी चाहिए। दूसरे कौमों को, धर्मों को ये बताया जाना चाहिए कि आयतुल्लाह ख़ुमैनी किसी टेररिस्ट का नाम नहीं था, बल्कि वो ख़ुद दुनिया में अमन के लिए लोगों को बताना चाहते थे कि इज़राइल और अमेरिका की हुकूमत दुनिया के अमन पसंद लोगों के ख़िलाफ़ है। ये जंग ईरान की नहीं है, ये जंग दुनिया की है। दुनिया के सामने आज एक बात निकल के आ गई कि अरब के देशों में जो तेल है, जो गैस है, जो उनका माशियात है, उस पर कब्ज़ा जमाए रखने के लिए ये बर्बरियत की जा रही है। आज इलाहाबाद में जो प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है वो खिराज अक़ीदत का है। उसमें ईरान एम्बेसी से आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब के रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर इलाही साहब आए हैं, वो इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। उनके अलावा और भी दीगर दूसरे कौमों के हज़रात आए हैं, जो दिल्ली से आए हैं और दूसरे जगहों से आए हैं, अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। सांस्कृतिक देश है अपना भारत, इसलिए सांस्कृतिक रिश्तों के साथ साथ पुराने संबंधों को नहीं भुलाया जा सकता। शायद यही भारत की असली पहचान है। इसी पहचान को निभाते हुए लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको चिंता भी है कि आने वाले वक्त में क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका एक व्यावसायिक जंग लड़ रहा है, एक तरीके से ये व्यावसायिक जंग है कि उसे कहीं ना कहीं आगे चलकर फ़ायदा होगा। इन फ़ायदों के बीच में ये क्यों ज़रूरी है और इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, ये बात भी हम वकील साहब से जानना चाहेंगे। देखिए, जंग के सामने से पर्दा हट चुका है कि ये जंग क्यों लड़ी जा रही है। ईरान पे 40 साल तक पाबंदी इसलिए नहीं लगाई आपने कि ईरान की हुकूमत जो है वो आपके ख़िलाफ़ है। आपने इसलिए लगाई कि जो उनके माशियात हैं वो आपके कंट्रोल में वो नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि हम इस माशियात का फ़ायदा दुनिया को अपने लेवल से दें। हम आज़ादी के साथ अहिंसावादी लोग हैं। हमें दुनिया में अपना कारोबार करने की, हमारी सोच को लोगों को बताने की ज़रूरत है। इसके ख़िलाफ़ जंग है। इज़राइल एक छोटा सा मुल्क है जिसे 1947-48 में अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश हुकूमत के लोगों ने सऊदी अरब के बादशाह को रिक्वेस्ट करके बसाया था कि साहब फ़िलिस्तीन में जगह दे दी, और 1948 में उन्होंने पहली बार 7 लाख फ़िलिस्तीनियों को उनके घरों से बेघर कर दिया था। तब से लेकर आज तक लगभग 7-8 लाख लोगों को वो मार चुके हैं और दुनिया का कोई भी शख्स ये कहने को तैयार नहीं होता कि साहब ये उनके साथ गलत हो रहा है। आज की तारीख़ में जब कभी अरब मुल्कों से बात की जाती है, भाई वो फ़िलिस्तीन में रहने वाले अरबी हैं, उनका ईरान से कोई लेना देना नहीं, या उनका शिया से लेना देना नहीं है, इंसानियत से लेना देना है। इसलिए बाकी कोई नहीं बोल रहा है, ईरान बोल रहा है। शरणार्थी के रूप में इजरायली आए और आकर बस गए, अधिग्रहण किया, ज़मीनें अधिग्रहण किया, लोगों की हत्याएं की, और ऐसी की अब हत्या हो गई है जो कहीं ना कहीं एक मानवता की मिसाल माने जाते थे, सादगी जीवन जीने वाले, और अपनी पूरी ज़िंदगी एजुकेशन में और दीन फैलाने में लगा दिया है। ये सिलसिला भी जारी रहेगा, आप जब तक हमारे साथ बने रहिए।